بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا جی آج کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارے جو بارڈرز کے پرابلمز ہیں، ویسٹرن بارڈر ہو، ایسٹرن بارڈر ہو، ہمارے جو ایشوز ہیں ہم اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں، نہیں ہو سکتی. ایشوز سب کو پتہ ہے. میں ایشوز پہ آج جاؤں گا لیکن ان کے سولوشنز نکال کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے ساتھ موجود ہے عبداللہ حمید گل صاحب، اطہر کاظمی صاحب، محمد علی درانی صاحب. سولوشنز میں کوشش کروں گا، فوکس کروں گا، سٹریس کروں گا کہ سولوشن نکال کے آپ کے سامنے رکھوں. عبداللہ صاحب میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. ہماری سچویشن جو ہے، ہمارے انٹرنل تھریٹس آپ کے سامنے، انٹرنل سچویشن جو سیکیورٹی کے آپ کے سامنے ہے. چاہے ہم بلوچستان، وہاں پہ بلوچستان کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہاں پہ پراکسی وارز چل رہی ہیں. جتنی ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں وہ وہاں پہ انگیج ہیں. ہیٹ ہمیں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہماری گراؤنڈ پہ پراکسی وارز چل رہی ہیں. پھر ہماری نیبرنگ کنٹری کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ایگریمنٹس ہوئے تھے when the Americans withdrew from here، تو وہاں پہ جو ایگریمنٹس کیے گئے تھے اور ساری اینٹیز نے ایگریمنٹس میں اس میں شامل تھیں کہ جناب جو لینڈ ہے وہ ہاسٹائل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں ہوگی افغانستان کی، بٹ وہ ابھی بھی یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بارڈر ہمارا پورس ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. سو ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود آل دیز تھنگس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں، ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس پاکستان کے ہیں، ہمیں اس کے پہلے تو سمجھنا ضروری ہے. ہم بار بار بات کرتے ہیں نیریٹو بلڈنگ کا، لیکن کوئی بھی نیریٹو اگر وہ ٹروتھ بیسڈ نہ ہو تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اچھے پازیٹیو ریزلٹس نہیں دیتا، اور دس از دا ڈائلیما. دوسری بات جو ہے وہ ہمیں پیغام پاکستان جو ہم نے ایک بیانیہ بنایا، بڑا اچھا بنایا، لیکن اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں اور اس کو میرے خیال میں ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے اور نئے سرے سے اثر نو اس کو جائزہ لینا پڑے گا. کیونکہ اگر پیغام پاکستان جو ہے وہ مضبوط پیغام دے رہا ہوتا تو ابھی دہشت گردی کے اندر بڑھانے کی بجائے اس کے اندر گھٹ جاتی وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے ڈیلیورنس ہوئی، جو علماء کو سلیکٹ کیا گیا، مے بی وہ جو ہائی اپس ہیں ان کے قریب ضرور ہوں، لیکن ایکچولی عوام کے اندر اور اپنے علاقوں کے اندر ان کی سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پیغام ڈسٹارٹ ہو کے پہنچا اور اس کا ایک منفی رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا. اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ کومبنگ آپریشن ہو جاتا ہے، اور آپریشن بالکل ہوتا ہے سیکریفائزز کے ساتھ، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے پھر جو ہے وہ دہشت گرد اگلے ہی دن جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے بات اس کے اندر بڑا سوچنے والی بات کہ وہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایک جو ہے آپریشن کرزن تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں لانچ ہوا، اور ہم نے اپنے ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کر لیا. 48 گھنٹے میں ہم نے 8 چھاؤنیاں شیلا باغ سے چمن جو دروش تک جو ہے وہ خالی کرا لی تھیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ روس آیا، ٹوٹ گیا سوویت یونین، اور ہمیں کوئی ایک سپاہی نہیں لگانا پڑا. آج جو ہے تقریباً 2 لاکھ پلس فوج جو ہے ہماری وہاں ڈپلائڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری پالیسی آف افینسونیس تھی، ہم افینسو پالیسی پہ بلیو کرتے ہیں، تو ہم نے وہ ڈیفینسو پالیسی، جب ڈیفینس کی طرف آیا تو پھر معاملات خراب ہوئے، جبکہ انڈیا جو تھا وہ افینسو ڈیفینس کی چلا گیا. انہوں نے ایسٹرن بارڈر کو بھی انگیج رکھا، اور انہوں نے ویسٹرن بارڈر افغانستان کے اندر بھی دیکھے نا، 5 قونصل خانے انہوں نے بنائے. تو وہ وہاں کوئی کرکٹ کا گیم تو کھیل نہیں رہے تھے، وہ یہی کام کر رہے تھے. ادھر سے کبھی کلبھوشن بھیجتے تھے، کبھی ادھر سے کچھ کرتے تھے، اور وہ سسٹم چلتا رہا. اب جو اس کے اندر آپ نے جو دوحہ ایگریمنٹ کی بات کی، وہ دیٹ از امپورٹنٹ. دوحہ ایگریمنٹ کے اندر 2 فریقین تھے، ایک تو تھا افغان طالبان اور ایک تھا جو ہے وہ امریکن خود. امریکنز کی طرف سے جو کمٹمنٹس تھیں وہ کیوں نہیں آنر ہوئیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آؤٹ آف 427,000 weapons which were taken to افغانستان بائی امریکہ، وہ 3 لاکھ کیوں چھوڑ گئے وہاں؟ ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے اقرار کیا. اور ساتھ ہی بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد سارا ایڈم کا پوڈ کاسٹ آپ کے نظر سے گزرا ہوگا، ہمارے معززین کے ساتھ سے بھی گزرا ہوگا، شی کلیئرلی سیز کہ ہم پشتونستان بنانے کے لیے CIA کے اندر ایک ہم نے جو ہے وہ سیل قائم کر دیا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کو نیگیٹ کسی نے نہیں کیا، نہ CIA لینگلے کی جانب سے آیا، نہ امریکن کی کسی جگہ. اور پھر کہتی ہے کہ $18.5 بلین ہم نے ایگزٹ کے بعد، وڈرال کے بعد جو ہے وہ ہم نے افغانستان کو دیا. $67 ملین پر منتھ جو ہے وہ ویسے بھی افغان گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، جس کا احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس کو اقرار کر چکا ہے. اگین کوئی ڈینائل اس کا نہیں آیا.
दिस शोज कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वेस्ट की जो आशीर्वाद है वो शामिल है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, वियतनाम से जब एग्जिट हुआ था, जब वियतनाम से एग्जिट किया अमेरिकन फोर्सेस ने, तो बहुत सा पैसा पंप इन किया उन्होंने वियतनाम के अंदर, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, पैसा पंप इन किया, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी जनरेट की उन्होंने कि वहाँ पे उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है। सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान। अगर इस स्ट्रेटजी को, वियतनाम वाली स्ट्रेटजी को, अगर एग्जिट स्ट्रेटजी के बाद जो हुआ था इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, और इसको अगर हम सामने रखें अफगानिस्तान को, तो सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। देखिए सर, बात यह है कि तब भी जनरल वेस्टमोरलैंड जो कमांडर था वो क्या कहता था, गिव मी मोर ट्रूप्स एंड गिव मी मोर रिसोर्सेज, आई कैन विन दिस वॉर। लेकिन फिर क्या हुआ, हेलीकॉप्टर पैड्स के साथ लटक के जाना पड़ा। अफगानिस्तान में उन्होंने जो एग्जिट तो कर लिया, अब वो एक फ्रेंडली एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि फ्रेंडली एंट्री के लिए भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और अफगान जो हैं वो अपना ज़ख्म भूलेंगे नहीं। लेकिन देखें, अफ़गानियों ने रशिया के साथ भी तो फिर अपने जो है वाबस्तगी कर ली है ना, बढ़ा ली है। वो क्या नाम था, ज़मीर काबुलोव, उसके साथ रवाबित बढ़ गए थे ना उसके। तो अब अफ़गानिस्तान के बिल्कुल मुलाकातें हो रही हैं। नॉर्वे में मुलाकात हुई है, अभी कुछ अर्सा कबल मुलाकात हुई है। इसी तरीके से जो है स्वीडन के अंदर मुलाकात हुई है, दुबई के अंदर मुलाकात हुई है। बिल्कुल अमेरिकन मिल रहे हैं, तालिबान के साथ मिल रहे हैं। अफ़गान तालिबान के साथ वो पहले भी जो है वो बिल्कुल राब्ते में थे। और मुल्ला बरादर को किसने रिलीज़ करवाया था, क्या अमेरिकन ने नहीं रिलीज़ करवाया था। तो ये सारी बातें हैं जिसको, लेकिन जो BLA की बात है वो इसी की कंटिन्यूटी के अंदर है। देखिए, BLA 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम है, और दुनिया के अंदर एक असूल है कि जब भी दहशतगर्द की कोई तंजीम होती है और इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो मिल के उसको कर्ब करती हैं। मुझे बताएं BLA के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया? माँ सवाए इसके कि उसको कहा गया कि जी इट इज़ द 5th नंबर जो है वो उसके ऊपर रैंक कर रही है। पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट दिया? पाकिस्तान को बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स जो थे, वो जो नाइट फ्लाइंग के उनके अंदर था, वो तकरीबन गालिबन 19 हेलीकॉप्टर थे हमारे पास। लेकिन जिस दिन विड्रॉल हुआ उस दिन काज़मी साहब को पता है कि उसके बाद जो है वो साथ अपने वो लेके चले गए। तो पाकिस्तान जो है वो हाई एंड ड्राई जो है ना उसको छोड़ के चले गए। वही वाली बात है। वो कौन से हेलीकॉप्टर थे ये साहब जो नाइट फैसिलिटीज के जी साथ वो मुझे पता है उसका। एक और हेलीकॉप्टर्स जो थे हमें मिलने थे टर्की से, जी वो उनके इंजन आने थे वहां से, वो भी पाबंदी लगा दी। 3 आए थे और वो वापस ले गए। जी वो 3 आए थे और उसमें भी कहा गया शायद खाकान अब्बासी साहब फ्लाई भी करके आए थे उनको एज प्राइम मिनिस्टर। जी जी। और उसमें बाकी आपको हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले कि प्रॉब्लम उनके इंजन जो थे, स्ट्रक्चर बनना था, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर जो था टर्की में बनना था, इंजन उनके अमेरिका से आने थे, वो नहीं मिले आपको, आज तक नहीं मिले। और वो पूरी एक खेप 30 हेलीकॉप्टर से, हालांकि ये टोटल वायलेशन है। मैं आपको ये बताऊं कि लामा हेलीकॉप्टर जिसको एल्विट 5 भी कहते हैं, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में इस्तेमाल हो रहा है, ये इंडिया बनाता है। इसका फ्रांस जो है उसने लाइसेंस पे दिया हुआ है। तो इंडिया जो है वो बना के फ्रांस देता है और फ्रांस से पाकिस्तान आते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ अगर वो उसके मुताबिक है तो यहाँ सिर्फ बदमाशी है अमेरिका की और कुछ भी नहीं। अतर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। देखिए, सारी दुनिया जो है जिस वक्त अफगानिस्तान से परे थी, दूर थी, और उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे पता नहीं मतलब अछूत हो कोई, लेकिन हम लोग उनको सीने से लगा के चलते रहे फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स। उनको होस्ट भी किया, उनको लुक आफ्टर भी किया, जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया उनके लिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हम लोग उनसे दूर हैं, अफगानिस्तान से दूर है, और बाकी दुनिया वहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, इंक्लूडिंग चाइना एंड ऑल दीज कंट्रीज। सो वो स्ट्रेटजी गलत थी या आज की स्ट्रेटजी हमारी गलत? देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया गलत है और हम सही हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम गलत थे और पूरी दुनिया जो बाकी लोग कह रहे हैं वो दोस्त है। समवेयर इन द मिडल। कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी यकीनन, हम ये तो नहीं कहते कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा दी है। अब आप ये देख लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त मौजूदा दुनिया, इंसानी तारीख का ताकतवर तरीन फौजी अलाइंस अफगानिस्तान में 20 साल बैठा रहा। 20 साल बैठा रहा। मेरे ख्याल में वो 10 किलोमीटर का एरिया सिक्योर नहीं कर सके जिस वक्त वो वहाँ पे बैठे थे। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान को देखें, हमने अपनी 1 इंच ज़मीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी। बहुत सारी मुश्किलात हैं, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारा इक्विपमेंट लिमिटेड है, लेकिन उसके बावजूद हमने भरपूर अपना हिस्सा जो हम अदा कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन हम इन्हें यहीं पर रहना है,
وہ لوگ تو جو کریں گے لوگوں کو ماریں گے وہ چلے گئے, انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور وہ چلے گئے. اب وہ سویڈن میں مل رہے ہیں, وہ مل رہے ہیں دوحہ میں مل رہے ہیں. ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے نا, یہ ہمارے نیبرز ہیں, ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. You can't change your neighbors. ہم نے ان سے اچھے تعلقات, ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ How can we do that اطہر صاحب اس وقت؟ وہ ٹھیک ہے انوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, ہر انوائرمنٹ کے حساب سے ہم لوگوں نے اپنے ڈیسیژنز لیے, اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. when you are like working you are bound to make mistakes. لیکن دین اگین اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انگیجمنٹ جی, بات ڈپلومیسی. آپ دیکھ لینا کہ یہاں پہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, بلاول پوری دنیا میں گھوم کے آیا, ہمارا وزیر خارجہ افغانستان نہیں گیا. اچھا میں اس بات تو پوائنٹ تو ہے آپ کا, لیکن جیسے عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اوفینسو اور ڈیفینسو, ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہیں جب ڈیفینسو پہ گئے تو وہاں پہ ہمارا دوسرا نیبرنگ کنٹری جو ہے انڈیا جو ہے وہ اوفینسو پہ چلا گیا, اس نے اوفینسو اسٹریٹجی ایوالو کر لی. سو ہمیں اوفینسو پہ رہنا چاہیے یا ڈیفینسو پہ ہی رہنا چاہیے, اس پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں صورتحال کے مطابق چلنا چاہیے. اکارڈنگلی خطے جو ہوتے ہیں نا, خطوں کے اندر ایک ملک نہیں ابھرتا. In the days to come we should be engaging with them. We've got nothing against Afghanistan, we've got nothing against India. ہمارے کوئی ایسے جارحانہ عزائم نہیں ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ افغانستان جانا ہے یا بھارت جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول ہو, اکنامکلی ہم پراسپر کریں, وہ بھی پراسپر کریں, ہم بھی پراسپر کریں. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا یہاں پہ پراسپر کر جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. خطے پورے, اب یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے, پورے خطے اٹھتے ہیں. تو ہم نے اس خطے کے اندر جب تک امن نہیں ہوگا, صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں, بھارت کی بھی ہیں, افغانستان کی بھی ہیں. اینڈ وی آل مسٹ ریکگنائز کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں, دوسرا کہاں پہ صحیح, اور چیزوں کو آگے کیسے لے کے چل سکتے ہیں. جب تک یہ ریٹرک رہے گی, چاہے ہماری طرف سے ہو, بھارت کی طرف سے ہو, افغانستان کی طرف سے ہو, صورتحال بہتر نہیں ہوگی. درانی صاحب آپ نے بہت سی حکومتیں دیکھی آتی جاتی, ان کے جناب عروج بھی دیکھے, زوال بھی دیکھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, مجھے سمجھ آتی ہے کہ انوائرمنٹ کے حساب سے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس وقت ہی اس کے حساب سے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں. اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے جو ڈیسیژنز لیے گئے تھے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتے ہیں. But my question is کہ we are looking for a way forward over here in this show. What is the way forward? دیکھیں اگر ہم یورپین یونین کی بات کریں تو آپس میں یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ٹریڈ کر رہی ہے آلموسٹ 98% آپس میں. یورپین کنٹریز جو ہیں, ہمارے یہاں پہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو یہاں پہ جو ٹریڈ ہے یا یہاں پہ سب کچھ چل رہا ہے, کاروبار کہہ لیں زندگی کا, وہ مشکل سے 2% بھی نہیں ہے. سو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جناب اگر یہ ہم ٹریڈ کھول دیں گے آپس میں تو ہمیں یہاں پہ ہیٹ فیس کرنا پڑے گی پاکستان کے اندر اکنامکلی, وہ درست ہے یا نہیں؟ اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہے رانا صاحب. میرا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آگے بڑھنا ہو تو پھر انوویٹو پیٹرنز اور انوویٹو انیشیٹوز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی لینے پڑتے ہیں اور لینے چاہیے. تو اس میں جو آج کی یہاں سچویشن ہے, دیکھیں اس میں تو جو پوری دنیا کہہ رہی ہے, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک ایسا ایٹماسفیئر جنریٹ کرنا چاہیے جو ایٹماسفیئر جو ہے وہ کانفیڈنس ریڈییٹ کر سکے اور وہ دنیا کو جو ہے ہمارا اعتماد اور ہماری یکجہتی کی طاقت سے آگے بڑھا سکے. انڈیا کی مثال آپ نے دی, افغانستان کی دی, پوری دنیا کی مثالیں ہیں. تو اس وقت کی آپ اگر جو سچویشن ہے آج, جو جس کا ہمیں چائنا بھی کہہ رہا ہے, امریکہ بھی کہہ رہا ہے, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم آپس میں الجھنے کے بجائے ہم آگے بڑھنے کے راستے اختیار کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ریجنل ایشوز ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریجنل ایشوز کے حل بھی ہمارے ریجن میں ہی موجود ہے. اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ کسی کانفلکٹ کو دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کی ریزولوشن میں جس دن ہم چائنا کو انوالو کر لیں گے اس دن ہمیں بہت سے راستے نئے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. Okay, this is a new one. You want that China should be here, China should step in between India and Pakistan, اور یہاں پہ ریکنسیلیشن کا ہے, ہمارے کور ایشوز ہیں ان کے تھرو ایڈریس کیے جائیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ, یا میں غلط تو نہیں سمجھ رہا؟
आप बहुत सही समझे हैं और मैं ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स एक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पे मेरा बहुत ज्यादा इन इश्यूज के ऊपर एक माजी का वो है। मैं तो वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे तो पॉलिटिकल रेफरेंस से ही बात करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपने स्ट्रेटेजिक मूव करनी हो, इंडिया के बारे में मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर दूं कि इंडिया बेसिकली एक बनिया है, एक ताजर है। उसने आखिर में आज भी आप देख लें कि चाइना के साथ उसकी कितनी ट्रेड है। तो आगे अगर आपने सोचना है तो अगर आज चाइना हम दूसरा ये है कि अगर हम किसी भी तरह से अमेरिका को बीच में लाएंगे और हम इस इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा पूरी पाकिस्तानी कौम जो भी कर रहा होगा उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर आपने इस इशू को वाकई रिजॉल्व करना है तो कश्मीर जो है वो चाइना का भी इशू है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भी इशू है, कश्मीर जो है वो इंडिया का भी इशू है। तो इन तीनों मुल्कों को अगर ट्राइलैटरल एक अरेंजमेंट के अंडर वो अपने इश्यूज को एड्रेस करें तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा और नेशनल लेवल पे सपोर्ट जो होगी वो इफेक्ट नहीं होगी और आवाम को ये भी पता होगा कि इस किसी भी अरेंजमेंट जो इस सारी गुफ्तगू के नीचे में निकलेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। वो कम से कम हो सकता है कि फौरी तौर पे कोई हल ना देता हो, लेकिन वो मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि मुस्तकबिल यूं ही होना है। माय क्वेश्चन इज कि व्हाई वुड चाइना एग्री टू दिस थिंग कि वो जनाब हम दोनों के जो इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं इंडिया के पाकिस्तान के, चाइना जो है वो स्टेप इन करेगा, हम एज अ गारंटर कह लें, एज अ नेगोशिएटर कह लें, बिग टाइम नेगोशिएटर, और ये सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। व्हाई वुड चाइना एग्री टू दिस? देखें, कोई चीज भी हमारे जो डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं होती है। एक वक्त में चाइना और अमेरिका को जब हमने मिलाया था तो उस वक्त इट वाज एन इम्पॉसिबल गेम। आज की सूरत हाल में चाइना को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाइना की ट्रेड कितनी है जरा अब्दुल्ला अभी बता देंगे आपको, चाइना और इंडिया की कितनी ट्रेड है? इसी तरह जी इट इज ऑलमोस्ट 130 अभी बिलियन आ गया। बिलियन। अच्छा, अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी ट्रेड वो इंडिया से कर रहा है, उसके बावजूद कि उसका शदीद कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर के ऊपर इंडिया के साथ, कश्मीर के ऊपर। अब ये भी हमें बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा इंडियंस को भी और पाकिस्तानियों को भी और रीजन को भी कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमने इनहेरिट नहीं किया था, ये ब्रिटेन ने इनकलकेट किया था हमारी इस सिचुएशन के अंदर, ताकि हम कभी भी आपस में, और ये मैं आपको बता दूं कि अगर दुनिया के अंदर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ये रीजन जो है ये एक आपस में ट्रेड करने वाला और ना लड़ने वाला जिस दिन रीजन बन गया, उस दिन इससे बड़ा कौन सा पार्टनर होगा और कौन सा बड़ा ग्रुप होगा? जबकि अब रशिया भी इसी तरफ आ रहा है और उस तरफ आप चले जाएं, जापान तक चले जाएं और कोरिया तक चले जाएं और इधर से आप इंडिया आ जाएं, और मतलब पूरा ये रीजन जो है जो हमेशा से ट्रेड पूरी दुनिया की कंट्रोल किया करता था, तावक्ते के अंग्रेज ने इसको अपनी फ्यूचरिस्टिक जिसे कहते हैं पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के जरिए they call Kashmir an unfinished business, you know, of partition. वो अनफिनिश बिजनेस को वो यहाँ पे कीलों के साथ ठोक के गए हैं कि निकल ना सके। जब हम निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये रीजनल इश्यूज को रीजन में लाके हम रिजॉल्व कर सकते हैं और इश्यूज के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कौन नहीं छोड़ेगी। ओके, गॉट योर पॉइंट। लेकिन हाउ कैन लाइक वी आइसोलेट आवरसेल्व्स, अब्दुल्ला साहब, फ्रॉम अ सोल सुपर पावर? सोल सुपर पावर है, उससे अपने आप को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं आप, जब व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन देम? जितनी डोनर एजेंसीज हैं, जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं, उनके स्ट्रिंग्स कहाँ से चलते हैं, वहाँ ऑपरेट होते हैं, वो तो अमेरिका से होते हैं। आप अपने आप को, यानी कि पाकिस्तान, हाउ कैन पाकिस्तान आइसोलेट इटसेल्फ फ्रॉम अमेरिका? वी आर डिपेंडेंट लैंडिंग एजेंसीज। राणा साहब, आप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, आप बेहतर इसमें चीज़ों को जानते हैं। देखिए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अमेरिका और पाकिस्तान का नरम गरम रिश्ता चलता रहा है और हमने बड़ी बातें करते रहे कि जी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, कभी सिमिंगटन तरमीम तो कभी जो है वो प्रेसलर तरमीम, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, और फिर अप्स एंड डाउन आते रहे। लेकिन हमें बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अभी चाइना भी बहुत डिमांडिंग हो गया पाकिस्तान के साथ, वो कहता है कि ये टोटल लुक ईस्ट पॉलिसी पे चले जाओ। हम बिल्कुल, दुरानी साहब जैसे बात कर रहे, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि वी हैव टू रीच आउट द वे वी रीच्ड आउट टू मॉस्को थ्रू यूजिंग द गुड ऑफिसेस ऑफ बीजिंग।
लेकिन इंडिया के मामले में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात यह है कि इंडिया का चाणक्य फॉर्मूला है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। चाणक्य कहता है कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। अब आप मुझे बताएं कि चाणक्य एक आइडियोलॉजी है ना, जैसे हम मुसलमान हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी है, इसी तरह से उनकी भी आइडियोलॉजी है। अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ा जो उन्होंने जॉइंट खड़ा किया है मगरिब ने, वो चाइना के खिलाफ कौन है? इंडिया। अच्छा, तो फिर इंडिया जो है वो चाइना रिजॉल्व करवाएगा? चाइना नहीं रिजॉल्व करवाएगा। चाइना की जो पॉलिसी है वो पहली बात है राइज पीसफुली है, लेकिन वो चाइना के साथ हमेशा ये मैं बात करता हूं कि समबडी इज पेइंग फ्रॉम द ब्लड। एक तरफ नॉर्थ कोरिया और एक तरफ पाकिस्तान। रिमलैंड एशिया के ऊपर हार्टलैंड फोर्सेस एशिया की जब भी आई हैं वो लड़ के आई हैं। ये पहली दफा है कि वो हार्टलैंड एशिया से रिमलैंड के ऊपर आ रही हैं। हम एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए हमारी स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन जो है वो कुर्बानियां दे रही है, रोजाना कुर्बानियां हो रही हैं। ये जो दहशतगर्दी है, आप मुझे बताएं कितने चाइनीज जो हैं वो इस टाइम पे अफगानिस्तान में कोई एक कैजुअल्टी हुई है? इसका मतलब है यहां कैजुअल्टी कौन करवा रहा है? पाकिस्तान में इंडिया करवा रहा है। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड? ये इंडिया है जो सारा, ये बीएलए के पीछे कौन है? बरामदाख बुक्टी को जो बुला के किसने वो उसकी गांधी की समाधि के ऊपर कौन लेके गया था? तो देखिए। बट अब्दुल्ला साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं भी पता था या व्यूअर्स को नहीं भी पता था, जिनके आपने जिक्र किया। बट व्हाट्स द सोल्यूशन? सर सोल्यूशन जो है, चाइना कैन नॉट डू इट। यू आर सेइंग दैट चाइना कैन नॉट स्टेप इन, राइट? चाइना एक हद से आगे नहीं जा सकता। वो ट्रेड जरूर करेंगे। आप ये देख लें, आउट ऑफ द वे जाके इस टाइम पे जो है यूक्रेन के अंदर अमेरिका और बाकी लोग मदद कर रहे हैं। क्या चीन पाकिस्तान की उस तरह से आउट ऑफ द वे मदद कर रहा है? मैं चीन का बहुत बड़ा दोस्त हूं, लेकिन ये एक रियलिटी है। That's a reality check you're रियलिटी coming है। up with. अच्छा, अब जो आपने स्ट्रेटेजी पूछी, देखें, इंपल्सिव एटीट्यूड्स को पाकिस्तान में खत्म करना पड़ेगा। एब्रप्ट हम एकदम एक रिएक्शनरी बन गए, मीडिया की तरह। खबर आई है तो हमने वो फौरन ब्रेकिंग करके जो है हमने वो खबर दे दी, और उसके बाद पता चलता है इतनी देर में कहीं और धमाका हो गया, खुदा ना खाता, तो हम पहली वाली खबर को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। इंपल्सिव एटीट्यूड्स को खत्म करके कलेक्टिव विजडम को अपनाएं। कलेक्टिव विजडम जो एक पुराना एक तरीका होता था, लोग बैठते थे, सोचते थे, इज्तिमाई दानिश जिसको कहा जाता है, वो बड़ा ज़रूरी है। जो इसके अंदर अहम चीज़ें हैं वो देखें, अफगान वॉर का जो आपका था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे, लोगों ने बड़े ताने दिए। आज इंडिया ने हासिल कर ली ना अफगानिस्तान में, $4.2 बिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की है अनऑफिशियल। पाकिस्तान का ट्रेड था उनके साथ अनऑफिशियल $5 बिलियन का, राना साहब। आज वो $0.7 बिलियन के ऊपर आ गया। क्यों? आप मुझे बताएं कि ये कैसे, हम इस डेप्थ को कैसे रोकेंगे? रोजाना दहशतगर्द आते जा रहे हैं। 1.5 लाख इस टाइम पे फौज हमारी जो 11 कोर है वो वहां उनसे नबरदार है, रोजाना शहादतें दे रही है। अगेंस्ट 3000 वो लोग हैं दहशतगर्द जो ख़त्म नहीं होते, और वो 3000 बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आपको आइडियोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर उनको रोकना पड़ेगा, जिसका मैंने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में आपको बताया। दूसरा जो डिजिटल दहशतगर्दी है, इसी तरह से पैगाम पाकिस्तान जो है नौजवान नस्ल के लिए भी होना चाहिए, जिसके अंदर यूथ को इंगेज करें और वो डिजिटल दहशतगर्दी और नेगेटिविज्म के साथ जो है उनको कर्ब किया जाए और उनको पॉजिटिव रास्ता दिखाया जाए। बलूचिस्तान में आपको याद होगा रैल्फ पीटर का नक्शा था 2005 में, कर्नल रैल्फ पीटर, अमेरिकन डिफेंस जर्नल में छपा था, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस जर्नल मैगजीन है वो। उसने क्या कहा था? ब्लड बॉर्डर्स। और ब्लड बॉर्डर्स पे पूरी दुनिया में अमल हो गया, बलूचिस्तान को उन्होंने सेपरेट दिखाया था ना राना साहब, यू रिमेंबर? तो फिर वो तो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो बता दिया है कि हम ये कर रहे हैं। इंडिया के लिए डोजियर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, कि उन्होंने बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है उनकी। क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। जो 2-3 बातें इसके अंदर देखें, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ हमें अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था फसाद एशिया भी अफ़गानिस्तान से है और अमन एशिया भी जो है अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है। हमें इसको बहरहाल इस रिश्ते को हमें दोबारा से सोचना चाहिए। उधर भी कुछ अच्छे लोग हैं मौजूद जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और इधर भी मुझ समेत बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो अफ़गान, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन जो वहाँ उनके यहाँ वेल रिस्पेक्टेड है। यहाँ कोई 1-2 ऐसे ऑफिसर्स भी हैं फॉर्मर हमारे जो आर्मी से हैं और दीगर हमारे पॉलिटिशियंस हैं। तो हम कम से कम नेशन टू नेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो कम से कम वो शुरू करें, ताकि क्रिकेट मैचों में हम जो है वो एक दूसरे के जो है वो खून के प्यासे ना हो जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है। जो इसके अंदर और बात है वो हमें
ईरान ट्रेड के ऊपर तवज्जो देनी है। हमें ईरान के साथ जो मेरी इब्राहिम रईसी साहब से अभी मुलाकात हुई और उससे पहले भी जो मेरी महमूद अहमदीनेजाद साहब से जब वो प्रेसिडेंट थे तो बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि हम $37 बिलियन का ट्रेड यूएई से करते हैं और हम पहले साल इस ट्रेड को $17 बिलियन पे लेके जा सकते हैं, और वो भी डॉलर में नहीं करना, हमने बार्टर ट्रेड करना है, माल के बदले में माल। और उसके लिए वो कहते हैं कि जी हमारे करेंसी के अंदर तो डॉलर तो फिर नीचे आ जाएगा ना, $100 एक महीने के अंदर आ जाएगा, जो क्योंकि आपकी ऑयल इंपोर्ट जितनी भी है वो डॉलर बेस्ड है, तो डॉलर जब नहीं इस्तेमाल होगा तो आपका मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम ईरान गैस पाइपलाइन पे भी काम नहीं कर सके। $22 बिलियन का बाय द वे जुर्माना है उसका ठीक है, जुर्माना भी है, सब कुछ है, सब जो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। इट्स राउंड द कॉर्नर, इट्स राउंड द कॉर्नर। मैं जरा जाना चाहूँगा अतर साहब के पास। अतर साहब, आपने ब्रिटिश मीडिया के साथ भी काम किया, एंड यू हैव अ विजन, विजन विच इज़ लाइक नॉर्मली यहाँ पे शायद बहुत कम लोगों के पास है। यू हैव बीन इंटरैक्टिंग विद लाइक इंटरनेशनल मीडिया एंड ऑल दोज पीपल। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग जो है, ये जो अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं या दुरानी साहब जो बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं? मतलब कि इसको जब कहते हैं ना, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, चाहे वो पॉलिटिकल एंड से हो, तो वो तो मुझे इसलिए मुश्किल नज़र आता है कि 26वीं आईनी तरमीम की तरफ अगर हम देखें तो 2 माह ऊपर नीचे वो तो मौलाना फजलुर रहमान के नौकर भाग गए, इसलिए वहाँ पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, या मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पे डिड पुट हिज फुट डाउन कि नहीं यार इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। तो बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट्स लाइक अ सिचुएशन। इज़ इट पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें हो सके? जैसे यूरोपियन यूनियन आपस में सारे मुल्क ट्रेड करते हैं 98%, ये हम लोग करते हैं मुश्किल से 2%। ये प्रॉक्सी वॉर्स यहाँ पे चल रही हैं, इधर देख लें बलूचिस्तान के अंदर पूरी लैंड जो प्रॉक्सी वॉर्स के लिए बनी हुई है, और हर मुल्क यहाँ पे जनाब अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, और हम लोग सारी ज़िंदगी गले लगा के फिरते रहे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ अफ़गानिस्तान को, अफ़गानियों को, अब सारी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे साथ वो इस तरह है जैसे पता नहीं कि जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं क्रिकेट मैचों में खून के दुश्मन बने होते। सो पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, या ऐसे ही वी आर लाइक विशफुल थिंकिंग है हमारी? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें ये क्यों पॉसिबल है मैं आपको बताऊं। अगर इस वक्त भी आप यूरोप को देखें, आप जिब्राल्टर की मिसाल ले लें। किसकी? जिब्राल्टर। अच्छा। आधा जिब्राल्टर बरतानिया के पास है, आधा जिब्राल्टर स्पेन के पास है। बरतानिया उसके ऊपर कहता है ये हमारा है, स्पेन कहता है इन्होंने हमारे जिब्राल्टर पे कब्जा किया हुआ है। तो सरहदी डिस्प्यूट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट जो है वो स्पेन जाता है, बरतानिया से उनका ट्रेड भी होता है। और यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते, वो बात करना जो है उनके शहरी एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड भी कर रहे हैं। 70 साल पीछे चले जाएं, ये एक दूसरे के गले ये जो आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन ये जो माइंडसेट है कि जनाब अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ज़ीरो हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों का हो, शायद उनके मैं उत्थे चीज़ां सस्तियां ने, इत्थे महंगियां ने, तो कंपीट नहीं कर सकांगे। तो उत्थे 18 रुपए का ऑलमोस्ट यूनिट है बिजली का, इत्थे बिजली का यूनिट कितने? तो कंपैटिबिलिटी को अगर देखें हम तो वो उस हिसाब से वाकई ये बात दुरुस्त है। नहीं, बस अब आप ये देखना कि यूरोप को आप देखें, यूरोप की मेजॉरिटी गैस जो है वो रशिया से आती है। हाँ। जो एनर्जी की अपनी वो सोर्सेज वो रशिया से पूरी करते हैं, आगे पीछे से पूरी करते हैं। ये हमें अपना जो विजन है वो टनल विजन से निकालना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉडर विजन। आपने चाइना और इंडिया की ट्रेड की बात की, अब साउथ चाइना सी में कितनी सख्त इस वक्त कशीदगी है। हर दूसरे दिन जहाज एक दूसरे के करीब आए होते हैं, फाइटर जेट्स एक दूसरे के करीब आए होते हैं, लेकिन कितने $100 अरब का ट्रेड है चाइना और चाइना और अमेरिका का। तो चाइना और अमेरिका का, तो हमें ये चीजें देखनी। दूसरी बात ये कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी जो अब्दुल्ला भाई ने बात की ना, कलेक्टिव विजडम को ये नहीं है कि 2 शख्स बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं और वो एक पॉलिसी बना दें कि जनाब ये हमारी पॉलिसी है। एक पॉलिसी आई तो वो कहें जी आज से हम रोशन ख्याल हैं। हमारे साथ होता है जो जिसकी इंडिकेशन कर रहे हैं ना अतर काज़मी कह रहा है, जिसकी कि यहाँ पे स्टैटिक नहीं होती, हर बंदे का अपना विजन होता है। सो यहाँ पे अगर चीज़ें चेंज होती हैं, ये टाइम्स चेंज होते हैं, ये ऑफिस चेंज होते हैं, तो वहाँ पे हर एक का डिफरेंट होता है। सो पॉलिसीज जो कॉन्टिन्यूएशन नहीं रहती उनकी, तो उसको किया जा सकता है कि जनाब जो भी आए जो भी जाए कॉन्टिन्यूएशन रहे, या कोई एक बंदा ही रख लिए मेरे ख्याल जरा 20 साल या लाइफ टाइम के लिए हो। देखें एक ही पॉलिसी लेके चलता है। देखें मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम वैसे यॉर्कर सुटिया सी वैसे बादशाहतों के अंदर कम से कम
अपनाइयत तो होती है ना, वो कहते हैं That's what I'm saying. हमारी ये जितनी kingdom- मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर किंगशिप है, किंगशिप, तो उसके अंदर कम से कम वो अपना तो समझते हैं। हम तो यहाँ आते हैं 4 साल के लिए, उसमें जितना मतलब हाथ पैर मार सकते हैं वो मार लेते जी हैं। हाँ। देखें, डॉक्ट्रिन वो होती है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। और ये डॉक्ट्रिन, अभी मैं मौजूद हूँ सीट पे और फिर ये डॉक्ट्रिन Yes. मेरी, तो इसी, और वो मेरे जाते ही डॉक्ट्रिन भी फौत हो जाती है। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। हमें अब समझना चाहिए कि ये निज़ाम जिसके तहत हम चल रहे हैं ये रिडंडेंट हो गया है। ये निज़ाम और पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट। आई एम गिविंग अ वेरी कैलकुलेटेड जजमेंट, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ कैलकुलेटेड जजमेंट। लेकिन मैं इस पे जितना फिर सोचा, केड़ा निज़ाम होना चाहिए? जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो, अल्लाह और उसके रसूल की हकमियत कायम करें, इंसाफ दें लोगों को। किसी मुआशरे में जिसमें इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन नहीं आया करता, और जहाँ इंसाफ और अमन का फुकदान होता है वहाँ खुशहाली कभी भी नहीं आती। वेरी गुड पॉइंट जी। मैं ज़रा दुरानी साहब से पूछूं। दुरानी साहब, पॉलिटिकली अगर हम देखा जाए तो पॉलिटिकली हम लोग को ये स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इश्यूज ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा। आप सब पॉलिटिशियंस को जानते हैं अंदर बाहर से, मैं बड़ी गहरी स्टेटमेंट दे गया हूँ। सो वो उसमें मैं ये जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये सब पॉलिटिशियंस जो हैं, अगर इफ़ दे कैन सिट अक्रॉस द टेबल, पुट देयर हेड्स टुगेदर और जॉट डाउन कर लें सारे इश्यूज और उन पे एक एक करके उनको एड्रेस कर ले वंस फॉर ऑल, इज इट पॉसिबल? क्या हो सकता है? कमरे बंद हो जान, एक बिल्डिंग बंद हो जान, चाहे महीना रहे चाहे 10 दिन रहे, उसके बाद सॉर्ट आउट करके निकलें या कर दिए जान तो वो हो सकता है पॉसिबल? सर मेरे ख्याल कर देता जाए वाली गलती हो सकता है, बाकी मुश्किल है। अच्छा, मैं अब 2-3 बातें बड़ी बेसिक, मैं हर बात आपकी समझ भी गया हूँ और मैं बहुत समझ के भी बात कर रहा हूँ। बात यह है कि अगर इन सारों को बंद भी कर देंगे तो इनकी दुम तो फिर कमरे से बाहर रहेगी, इनकी जायदादें तो मुल्क से बाहर हैं, तो लिहाजा आपको शायद बंद करके भी इनका मसला हल ना हो सके। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने चैलेंजेस हैं, नहीं, एक मिनट रुक जाए, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है आपने कि लेकिन अगर नहीं, सब चीज़ें अगर इंटरेस्ट बाहर है और ये विकेशनल जगह बन चुकी है बकौल आपके, जो इन सो मेनी वर्ड्स व्हिच यू आर सेइंग, तो अगर ये विकेशनल जगह है, ये विकेशंस के लिए ये जगह बनाई गई हुई है मेजॉरिटी लोगों ने, यहाँ पे पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को, तो फिर इसका ऐसा हल हो रही है जिस तरह इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि ये होना चाहिए निज़ाम, फिर आप व्हाट आर यू लाइक सजेस्टिंग, व्हाट निज़ाम आर यू सजेस्टिंग? हाँ, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं तमाम तर जिंदगी भर का जो तजर्बा और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर, और बिलखसूस अगर 8 फरवरी तक मैं चला जाऊं, उसके बाद भी मैं इसी नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि आपने अगर इनको सबमिट कराना है, जिसके आगे ये बोल ना सकें, तो उसकी 2 जगह हैं। एक, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सबमिट कराएं, और दूसरा, इनको पब्लिक का राइट टू इलेक्ट देयर रूलर। इसमें हम करते हैं चक्करबाजी। मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा फार्मूला बन जाए जिसमें मैं फिट आ सकूं, आप कोशिश करते हैं कोई ऐसा फार्मूला बन जाए जिसमें आप फिट आ सके। फार्मूला ऐसा अभी तक दुनिया में कोई इवॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपने डिक्टेटरशिप की तरफ जाना है तो फिर सीधा डिक्टेटरशिप की तरफ जाएं। अगर आपने लेकिन माफ कीजिएगा दुरानी साहब, मसला ये होता है कि जो भी डिक्टेटर आया यहाँ पे वो डिक्टेटर रहा नहीं है, और आफ्टर अ सर्टेन स्पैन उनको फिर जमहूरियत का एकदम फिर वो शौक पैदा हो जाता है। ये इसलिए पैदा होता है कि इस मुल्क की बुनियादों के अंदर जमहूरियत घुसी हुई है, उसको आप नहीं निकाल सकेंगे। मेरा ये पॉइंट है कि जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अवाम के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई, अल्लाह के बाद अगर किसी को तस्लीम करना है तो अवाम के राइट टू वोट, शूरा में अवाम ही होते हैं, और अवाम की राय से बनने वाले इदारे ही जो है वो डिलीवर करते हैं। गॉट योर पॉइंट जी। अतर काजिम साहब, वाइंड अप करना है। डू यू एग्री विद अब्दुल्ला साहब या यू एग्री विद दुरानी साहब? डेमोक्रेसी, देखिए मैं दोनों ने जो बातें की हैं दोनों में मैं दोनों से एग्री करता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब तक हम अपने आप को महदूद नहीं करेंगे, चाहे अदलिया हो, चाहे आपकी इंतज़ामिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो,
عوام کے سامنے آپ کو جو ہے نا ماننا پڑے گا عوام کا رائٹ ہے کہ انہوں نے چوز کرنا ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو کوستے تو ہیں, جمہوریت تو یہاں پہ کبھی آئی نہیں ہے, ہم جمہوری اداروں کو چلنے نہیں دیتے, عوام کی مرضی سے کیا کی چیزیں یہاں پہ چلتی ہیں. تو یہ ایشو وہ ہے کہ اگر اس ملک میں عدالت کمزور ہوگی, اس ملک میں اسمبلی کمزور ہوگی, سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی, اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی, تو کبھی بھی ملک مضبوط نہیں ہوگا. لیکن یہ سارے تب ہی مضبوط ہوں گے جب یہ اپنے کردار کو محدود کریں گے آئین کے اندر, جب جو آئین کے اندر ان کا کردار ہے. جی تھینک یو ویری جی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت تو برطانیہ میں ہے, 10 لاکھ لوگ نکلے تھے کہ عراق پہ حملہ نہ کرو, بعد میں بتا بھی دیا ٹونی بلیئر نے کہ جی اٹ واز کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھا, تو وہاں جمہور کی سنی گئی, تو جمہور کی نہیں سنی جاتی. سر یہ پوائنٹ بڑا دیکھیں اینڈ میں آ کے نا عبداللہ صاحب نے یہاں پہ ایک یارکر پھینک دیا ہے, ڈیفائی کریں, ووٹ دے کے ٹونی بلیئر کو فارغ کر دیا, تاریخ کی کوڑے یہ بھی پوائنٹ ہے سر, ٹونی بلیئر کو فارغ کر دیا. پورا برطانیہ آج بھی 1,20,000 کل انہوں نے رات نکالا ہے کہ مت کرو, تو ویپن ان کو اٹھا کے جو ہے غزہ میں دے رہے ہیں. ڈیفائی کریں آپ on the basis of your deterrence and then have a equal dialogue. یہ ایسے نہیں مانیں گے, یہ کبھی بھی پاکستان is a square peg in the round hole of the new world order. یہ اس کی نگیشن ہے, کبھی بھی نہیں یہ پورا کرنے دیں گے. میرے خیال میں جتنا میں کوشش کر سکتا تھا اس مختصر سے وقت میں کہ کوئی یہاں پہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہو, یہاں پہ کوئی سولوشنز نکلیں چیزوں کے. میرے خیال میں یہاں پہ اوپینینز ہیں, سارے سب کی اپنی اپنی اوپینین ہے, اور سب کے یہاں پہ جو سولوشنز دیے ہیں, چاہے درانی صاحب ہو چاہے عطر کاظمی صاحب ہو, سب نے اپنے اپنے سولوشنز دیے ہیں کہ یہاں اس طرح یہ سولوشن ہے ہماری جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. تھینک یو آل جی فار کمنگ ان, بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.